Mute your sound. Good morning, all of you. Today we will continue about the motor disorders. So motor disorder can be classified into two types. One is the subjective motor disorder, another is the objective motor disorder. Okay, subjective motor disorder, another one is the objective motor disorder. So on the basis of that, we will classify again the disorder into the following type: disorders of the adaptive movement, disorders of the non-adaptive movement, motor speech disturbances, disorder of posture, abnormal complex pattern of behavior, drug-induced movement disorder. Are you getting my sound? Yes, sir. Okay, very good. Okay, next come back to disorders of adaptive movement. Okay, so we'll focus on that. Okay, under that we'll study disorders of excessive movement, disorders of reactive movement, disorder of goal directed movement. So it comes under the adaptive movement. Okay, just wait few seconds. Okay, now. So okay, next come back to the disorders of adaptive movement. Under that we'll study about the disorders of expressive movement. Okay, the disorders of expressive movement. Look here, this one is the important criteria. Expressive movement. Okay, it will involve the face, arms, hands, and the upper trunk. Whenever we'll show a different kind of emotion, at the same time, the face will also change their movement. On the other hand, arms will change, hands will change, and the upper trunk will change. ओके सपोज मैं आपको पूछा कुछ आप जानते हो मैं अभी जो पूछा क्वेश्चन आपको सुनाई दे रहा है नहीं सर सुनाई दे रहा है सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट ओके एक्सप्रेसिव मूवमेंट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट योर इमोशन okay about your expression what you want to say me okay so in this way if anything will be happen if disorders will be happen to the expressive movement the normal individual cannot show his or her expression okay so if it will be happen in case of only mentally ill individual okay next come back to okay in depression generalized psychomotor retardation bodily gesture diminished or absent if someone in the depressive or generalized psychomotor disorder in that cases what will be happen their bodily gesture will not give us a proper expression so that in that case you will understand there is something is going on wrong in that individual अगर एक लड़का या लड़की की एक आदमी में अगर वो डिप्रेशन में हम आपको उसको पूछ रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं that person is not giving any single response to you ओके आप जो भी बोल रहे हैं वो रेस्पॉन्स नहीं रहा है वो लोनली रह रहा है कुछ बोल भी नहीं रहा है तो हमको पता चल गया कि जो ये दैट इंडिविजुअल दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल डू नॉट showing his or her expression to us so that in that case you understand there is a diminish there is a absence of the gesture in that individual okay we'll understand this one is the non expressive movement shown by that individual okay देखो यहाँ देखो एक ठो कैसे रो रहा है उसके बाद बोलेगा आई एम नथिंग मैं कुछ नहीं हूँ मैं जो काम किया मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूँ एंड देयर इज समथिंग negativity will come into the minds of that individual okay next come back to the omega sign और omega melancholicum इसको बोलते हैं wrinkling of the skin above the nose between the eyebrows that resembles the Greek letter omega produced by the excessive action of corrugator muscle okay look here this one will see the corrugator muscle okay corrugator muscle will see okay wrinkle देखने को मिल रहा है यहाँ पर okay इसको कौन फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे चार्ल्स डार्विन किए थे द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन द मैन एंड एनिमल ओके इसमें पता चल जाएगा अगर ऐसे देखने को ओमेगा साइन बोल रहे हैं यहाँ को और ओमेगा मेलांकोलिकम बोलते हैं इसको वो रिंकलिंग मैंने को कैसे वो एक्सप्रेशन कर रहा है हमको पता चल जाएगा कि ये आदमी कैसा बिहेव कर रहा है
ओके, क्योंकि पहला वो चार्ल्स डार्विन देखने को मिला था, मैन में वो एनिमल में देखने को मिला था। तो ओमेगा साइन कौन किए थे, डिस्क्राइब किए थे, चार्ल्स डार्विन किए थे। कि क्या देखने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स। ओके, वहां पर रिंकिल होगा, रिंकिल ऑफ द स्किन above the nose and between the eyebrows that resembles the Greek letter omega. Okay, next come back to the Veraguth fold. The main fold in upper eyelid each angulated upwards and backward. देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं भेरागुथ फोल्ड बोल के बोलते हैं। ओके, इसको कौन डिस्क्राइब किए थे, ऑटो भेरागुथ किए थे। ओके, भेरागुथ फोल्ड वाज डिस्क्राइब बाय ऑटो भेरागुथ। आर यू गेटिंग दिस वन? नेक्स्ट, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ ड्रॉन डाउनवर्ड्स इन डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन कुछ कोई होगा तो उसी टाइम में क्या होगा, जो कॉर्नर ऑफ द माउथ रहेगा, अगर लेफ्ट कॉर्नर क्या, राइट कॉर्नर। ओके, तो हमको पता चलेगा कि ये आदमी अभी डिप्रेशन में है। ओके, नाउ दैट इंडिविजुअल इज इन द डिप्रेशन। Another important thing is that agitated or anxious depression patient may be restless or apprehensive, talking continuously, hand wringing, fidgeting, tearing at the clothing. ओके, जो आदमी अगर एजिटेटेड होता है या एंग्जियस डिप्रेशन है, ओके, वही आदमी में क्या रेस्टलेसनेस होगा, उसको नींद नहीं लगेगा। अप्रीहेंसिव टॉकिंग कंटिन्यूअसली, ओके, मीन ऐसे टॉकिंग करेगा कि मीन कंटिन्यूअस टॉकिंग करेगा, जो चीज उसको मीन कुछ उसको मीन समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन दैट। सो वहां पर क्या होगा, तो क्या होगा वहां पर अप्रीहेंसिव टॉकिंग, कंटिन्यूअसली वो टॉकिंग करेगा। अनदर इज हैंड रिंगिंग टाइप का करेगा, जब लिखेगा कुछ लिखने के जाएगा तो ऐसे ऐसे मूवमेंट, जस्ट लाइक ए ट्रेमर, हैंड ट्रेमर जैसा टाइप का होगा। ओके, अनदर द फीट गेटिंग, ओके, विल सी आल्सो दिस वन, एंड टीयरिंग एट द क्लोथिंग। ओके, मीन थोड़ा थोड़ा में बातों में भी वो रोएगा और जाएगा क्लॉथ को पूछने की चेष्टा करेगा, बार बार दैट पर्सन विल टेक द क्लॉथ, एंड क्लॉथ मींस जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द हैंडकरचीफ हो या अदर क्लॉथ है जो भी उसको पकड़ रखा है, बार बार उसमें जाके कांदेगा, रोएगा। ओके, सो ये कहां पर देखते हैं, जो आदमी अगर एजिटेड और एंग्जियस डिप्रेशन होता है, आइटेशन, सीवियर एंजाइटी विद मोटर रेस्टलेसनेस। जो आदमी एजिटेशन कैसे में, सीवियर एंजाइटी जिसका होगा या मोटर रेस्टलेसनेस, ओके, अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एराउजल। ओके, मीन अनप्लीजेंट स्टेट होगा, जो कि मीन नहीं सोचता होगा वही सिचुएशन आएगा। ओके, एक्सटेंसिवली वही हठात एक आदमी को बोलेंगे कि तेरा मम्मी खराब हो गया कि पापा खराब हो गया, क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू, मीन सोच नहीं पाएगा। ओके, अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एराउजल, आइटेशन। ओके, मीन वो नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा टाइप का न्यूज आएगा। ओके, कैन कम सडनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैं बोला ना वही चीज हठात आएगा, मीन हमको पता नहीं चलेगा अरे भाई कैसा अभी न्यूज आ गया, मैं नहीं सोचा था। ओके, अभी देखो सुशांत सिंह राजपूत जो उनका हो गया, सबको में को नो वन इज एक्सपेक्टेड, किसी ने मार दिया बोला, किसी ने क्या क्या, सो दीस आर द सम ऑफ द अनएक्सपेक्टेड न्यूज। ओके, हमको पता भी नहीं था कि ये होगा बोल के। उसके बाद क्या होगा, क्या नौकर इन एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, उसमें डिमेंशिया की वजह से, सिजोफ्रेनिया, मानिया, ड्रग इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल मेडिकल इलनेस। ओके, उसके बाद आप देखेंगे अकाथीसिया एंड एक्साइटमेंट। ओके, अकाथीसिया एंड एक्साइटमेंट, इसमें भी हमको देखने को मिलेगा। अकाथीसिया मीन क्या है, लिख लो, इनएबिलिटी टू कीप सिटिंग स्टिल ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। वो आदमी वहां पर बैठ नहीं पाएगा, वो आदमी बैठ नहीं पाएगा, जहां पर बैठा है वहां पर वो बैठ नहीं पाएगा। ओके, दैट पर्सन इज अनएबल टू सिट देयर इफ समवन हैज द agitated behavior. Okay, dystonia क्या होगा, painful severe muscle spasm. What is the meaning of dystonia? Okay, painful severe muscle spasm. Okay, muscle जहां spasm हो गया होगा वहां पर severe pain होगा। Okay, next come back to okay, look here, this one the diagram, schizophrenia, catatonia, schizophrenia देखो, excessive movement disorder और scanty stiff expressive है, excessive grimacing, snort spasm, देखो यहाँ कैसे दिख रहा है। ओके, मीन पूरा ये काटाटोनिया। ओके, काटाटोनिया में हमको बेसिकली क्या देखने को मिलता है, काटाटोनिक स्टupor क्या होता है, जहां पर ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट होता है।
ओके देखो स्टीप आई मीन जैसा है पूरा वैसे है। ओके ये चाइनीज है बोल के पता नहीं चल रहा है हमको, अगर इंडियन होता तो थोड़ा पता चलता कि पूरा ये एक्चुअली थोड़ा मीन एंगर में है बोल के। इसका मीन पता नहीं चल रहा है ना, मीन उनका नॉर्मल फेस भी वैसे रहता है। वी कांट सी दिस वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो नॉर्मल हमारा इंडियन अगर होता और एशियन, बेसिकली हमारा इंडियन का बात बोल रहा हूँ, वो मैंने अग्रेसिव होता तो पता चल कि अग्रेसिव स्टीप फेस पूरा कंटिन्यूअसली वैसे फेस। इसका देखो मैंने ग्रीम एक्सेसिव ग्रीमेसिंग, नो मूवमेंट विल बी देयर। ओके देख काटाटोनिक टू, जो आदमी अगर मेंटली इल रहेगा उसका एक्सेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर्स होगा और स्कांटी टीव एक्सप्रेशन मीन उसका मूवमेंट जो ये फेसिया में जो है ना कम मूवमेंट होगा। हम जैसे कुछ होगा जैसे मूवमेंट होगा, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ स्टीप एक्सप्रेसिव फेस। ये नहीं लुक हियर मानिया वाइड एक्सप्रेसिव जेस्चर। ओके देखो कैसा, मैं जस्ट आई एम शोइंग दिस वन। ओके मानिया में क्या होता है, यहाँ पर सबसे में ऐसे खुश रहेगा कि दुनिया के सब चीज उसको मिल गया है। ओके दुनिया का सब मिल गया है, मीन वो मानिया में होता है। अगर मानिक डिप्रेसिव सिंड्रोम होगा, कभी कभी एंगर हो जाएगा, कभी कभी डिप्रेशन में चला जाएगा। सो दीस आर द सम ऑफ द मानिक डिप्रेसिव सिंड्रोम। एक्टाक्सी और एक्साल्टेशन, रैपिड इंटेंस लुक, इनकम्युनिकेटिव। ओके ये मीन एक्टाक्सी और एक्साल्टेशन जो बोलते हैं, इसमें रैपिड इंटेंस लुक दिखाएगा। ओके हठात सडन टाइप का लुक शो करेगा और इनकम्युनिकेटिव, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन दैट इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट कम बैक टू हैव यू एनी डाउट्स, यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन inside the chat box, then I will answer you. Okay next come back to the disorders of the reactive movement, immediate automatic adjustment to new stimuli. Okay for example एक आदमी सोया है, तुम नहीं कुछ बुला रहे, मैं इंजेक्शन दूंगा कि तो उसको मैं अलग प्रोसीजर करूंगा, फटाफट सडन दे देगा। यहाँ पर जो न्यू स्टिमुली क्रिएट होगा ना, दैट इज इमीडिएट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट टू द न्यू स्टिमुलाई। कि हठात हमको हठात एक आदमी बैठा होगा, उसको बोलेंगे भाई तुम कुछ बोलो बोल के बोलेंगे, ऑल्दो दैट पर्सन हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ हर समय। माइंड में अगर एक आदमी अगर एडजस्ट नहीं होगा तो उसको बोलने के बोलेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग चेंज होने का भी चांसेस है। इमीडिएट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट एंजाइटी स्टेट्स, एक्सेसिव रिएक्टिव मूवमेंट। अगर जो आदमी अगर एंजाइटी में रहेगा, डेफिनेटली देयर विल बी एक्सेसिव रिएक्टिव मूवमेंट। ओके रिएक्टिव मूवमेंट्स आर अफेक्टेड बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन काटाटोनी और स्टूपर जो बारे में बोल रहा है, क्योंकि अग्रेसिव मूवमेंट के वजह से भी रिएक्टिव मूवमेंट हैम्पर होता है। रिएक्टिव मूवमेंट क्या, तुम कुछ आप लोगों में कुछ चीज बोला, मैंने यू पीपल आर गिविंग मी सडनली रिप्लाई सर यस और नो, मैं जस्ट आई एम टेलिंग यू दे आर यू लिसनिंग प्रॉपर्ली। फ्यू स्टूडेंट्स आर दे आर टेलिंग मी सर वी आर लिसनिंग प्रॉपर्ली, व्हाट यू आर टेलिंग। ओके मैं बोला कि ठीक है चलो, तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। मैं उसी बात बोला कि यार whether can you ask some question about this disorders of motor activity। किसी स्टूडेंट दो चार स्टूडेंट बोले सर obviously I will ask you questions, there is a down in your topic, किसी ने बोला। so these are the some of the क्या reactive हम रिएक्शन दे रहे हैं। ओके एक्शन था रिएक्शन दे। मूवमेंट्स क्या होगा, हठात पिन पिक किए कि किसी आदमी को टच किया, हठात आप लोगों को देखेगा। जब भी हम जो आदमी अगर एंजाइटी में रहेगा उसको हम टच भी कर दिए तो उसी टाइम क्या सडन और एक्सप्रेसिव दिखाएगा, उसको बोलते हैं एक्सेसिव रिएक्टिव मूवमेंट। ओके disorders of goal directed movement, voluntary movement that are organized around behavioral goal, environmental context and task specific, as distinguished from the reflexive movement, reflect both the personality and their present mood state. In depression, actions become more difficult to initiate and carry out. Look here, disorders of goal directed movement. यहाँ पर जो भी डिसऑर्डर दिखाया जाता है गोल डायरेक्टेड मूवमेंट, हम एक आदमी का एक तो गोल है। ओके सपोज आपको अभी स्कूल आना है, आपका गोल क्या है, स्कूल को आना है। जो अभी मीन अभी पढ़ाई करना, घर में रह रहे के बोर हो गए हैं, क्वार्टर में रह गए, बाहर तो घूम नहीं सकते हो, स्कूल आएंगे तो कम से कम हॉस्पिटल जा पाएंगे, फिर दोस्त के साथ बात करेंगे। ओके कितना मोबाइल देखेगा, कितना टीवी देखेगा, कितना पढ़ेगा, दिन में 3-4 टूर क्लास हो रहे हैं।
सो आपका गोल अभी क्या है? स्कूल आना। सबका है तो गोल स्कूल आना। अगर किसी का गोल आने का नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि देयर में भी तो सम डिजॉर्डर, देयर में भी तो सम प्रॉब्लम्स आर देयर। ओके, हमारा भी जो भी गोल रहता है वो बिहेवियरल गोल्स होता है। ओके, एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट को लेके होता है और एक टास्क स्पेसिफिक होता है जिसके वजह से हमारा रिफ्लेक्सिव मूवमेंट शो करता है। नहीं आज मेरे आज जाना है, मेरे को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, मेरे को बस टिकट करना है कि ट्रेन टिकट करना है कि एरोप्लेन टिकट करना है, जो भी मेरे को भी करना है, मेरा ये तो भी टास्क है। आफ्टर जाने के बाद मेरे को क्या क्या करना है, ओके पहला ये चीज कर देना है, मैंने ऐसे ऐसे कंटिन्यू मैंने आई हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन द साइमल्टेनियसली। ओके, मीन इट विल रिफ्लेक्ट बोथ द पर्सनालिटी। ओके, पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद प्रेजेंट जो मूड स्टेट रहेगा उसको भी करेगा। और जो आदमी अगर डिप्रेशन में रहेगा, दे कांट इनिशिएट, वो काम को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे या कैरी आउट भी नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, इन मानिया, ओके सॉरी, in mania, increase involvement in goal directed activity is pleasure। ओके, मैं जिसमें उसको प्लेजर मिलेगा, एंजॉय मिलेगा, वो काम में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो लेगा। ओके, मानिक पेशेंट, ओवरऑल पार्टनर बिहेवियर नॉट कंसिस्टेंट। मैं बोला ना मैनिक डिप्रेसिव पेशेंट क्या होता है, कभी तो खुश रहेगा, कभी उसको फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, मीन नॉट कंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट इसको बोल सकते हो अगर सिंगल वर्ड में बोलेंगे तो। इन काटाटूनिया अग्रेसिव बिहेवियर, ब्लॉकिंग और ऑब्स्ट्रक्शन और स्पेरुंग बोलते हैं उसको। ऑब्स्ट्रक्शन क्या? स्पेरुंग गिव्स राइज टू एन इरेगुलर हिंड्रेंस टू मोटर एक्टिविटी। जो मोटर मैंने जो काम करने का सूझ रहा है उसमें बारंबार तकलीफ आते रहेगा, बार बार उसमें रुकावट आते रहेगा। आर यू गेटिंग दिस वन? रिटार्डेशन भी है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। स्टूपर occurs with severe grades of obstruction. Okay, next one is mannerism. Usually repeated performance of a goal-directed action or the maintenance of an unusual modification of an adaptive posture. The strange use of work, high fold expression, movements, posture out of keeping with the total situation, bizarreries. Okay, grotesque, distorted movement, posture in which no goal or aim can be seen. ओके, ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे भी मैनर शो करेगा कि ओके वो आदमी का कुल गोल भी नहीं है, कुल एम भी नहीं है। ओके, मीन मीन एक आदमी का फॉर एग्जांपल टुमारो एग्जाम, देयर इज ए एग्जाम और टुमारो इज गोइंग टू बी ए एग्जाम इन समवेयर एल्स। एट द सेम टाइम someone is not preparing himself or herself, we can't say that person is some goal oriented। हम नहीं बोल सकते भाई वो गोल ओरिएंटेड है, वो एग्जाम के लिए रेडी नहीं हुआ होगा। मैं ऐसा बिहेव शो करेगा कि ऐसा पोस्चर शो करेगा कि वी कांट सी। ओके, मीन बेसिकली विल सी दिस वन इन केस ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ द मोटर एक्टिविटी। नॉर्मल माने वी कांट सी इन द डिसऑर्डर्स ऑफ द, और वी कांट सी इन द नॉर्मल इंडिविजुअल, ओनली विल सी इन द मेंटली ओके इल इंडिविजुअल, those who are having the disorders of the what मोटर एक्टिविटी। उसके बाद आ जाओ डिसऑर्डर्स ऑफ नॉन एडेप्टिव मूवमेंट। यहाँ पर मूवमेंट का कुछ यहाँ पर नहीं है। ओके, हम देखेंगे मूवमेंट का कैसे यहाँ है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मोटर हैबिट दैट आर नॉट गोल डायरेक्टेड लाइक स्क्रैचिंग ऑफ द हेड, क्लियरिंग द थ्रोट। ओके, बार बार ऐसा ऐसा करना है। ओके, कुछ बोला ना बोला, ओके ऐसे जस्ट मैं ऐसे मीन करना, हमको सोचा कुछ सोच रहे हैं। ओके, अगर आदमी वैसे किया या कुछ भूल गया है या तो क्लियरिंग हो। ओके, सो ये कि स्पॉन्टेनियस जो चीज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा जो कि वही सिचुएशन के हिसाब से अडेप्टेबल नहीं है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी, द नॉर्मल मोटर हैबिट्स ऑकरिंग व्हेन द इंडिविजुअल इज फ्रस्ट्रेटेड और इज कंसर्न्ड अबाउट देयर चॉइस ऑफ बिहेवियर पैटर्न। और एक आदमी अगर क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ओके फॉर एग्जांपल if any individual, if someone will be frustrated, definitely his or her behavior will change into certain aspect. Are you getting this one? It change into certain aspect. Okay,
their normal behavior will change into abnormal behavior. Okay, next for stereotype. Repetitive ritualistic movement, posture or utterance. Stereotyping may be simple movements such as body rocking, complex or self-caressing, crossing or crossing of the leg, marching in place. It may be possible to discern the remnants of goal-directed movement in stereotype. They are found in people with schizophrenia, intellectual disability, autism, spectrum disorder, tardive dyskinesia, stereotyping movement disorder. Okay, stereotype movement disorder. Okay, stereotyping movement disorder. ओके, स्टेरियोटाइप मीन क्या है? एक चीज को बार बार रिपीट करना, ओके, बार बार मूवमेंट के साथ करना। ओके, बेसिकली ये कहाँ पर देखने को मिला, कौन कौन सा डी में? सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डी में, जो नॉलेज में एक, अगर किसी को पता नहीं कि सोमान इज, अरे कौन साउंड कर रहा है, व्हिच ओपनिंग साउंड, शांतिलता, म्यूट साउंड। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हाँ, ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, सिजोफ्रेनिया में हमको स्टेरियोटाइप मन बार बार एक बात को रिपीट करता रहेगा। ओके, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ओके, अगर कोई आदमी को पता नहीं, जो हम अंतर्निहित गुणावली बोलते हैं, एक आदमी का अगर इतना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं कि वो ये बोल सकते हैं, कुछ भी टॉपिक दिए, वो टॉपिक के बारे में आदमी को पता नहीं, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू parakinesia, seen in catatonia, described by Cleich in 1943. Continuous irregular movement of the musculature. Okay, irregular movement होगा, musculature का irregular movement होगा, continuous होगा, irregular movement. Patient grimace, twitch or jerk continuously. Okay, mean ऐसे टाइप का ये mean ऐसे होगा, mean jerk movement. Some of facial grimace will change. Just I'm telling to that right side one, other side भी, okay, right side भी, man left side भी हो सकता है. Although I'm not having that parakinesia, just I'm showing how it will be like that, isn't it? Parakinetic catatonia, a type of schizophrenia. Carl Leonhardt, okay, type of schizophrenia. Carl Leonhardt नाम का एक साइकेट्रिस्ट तो किए थे, पैराकाइनेटिक कैटाटोनिया देखे थे, वो डिस्क्राइब किए थे वो लोग। ओके, पैराकाइनेटिक कैटाटोनिया इज ए टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल लियोनहार्ड। ओके, नेक्स्ट वन बड़ी इनवॉलंटरी मूवमेंट, टिक्स, सडन रिपीटेटिव रिदमिक मोटर मूवमेंट और वोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट मसल ग्रुप। कॉमनली द फेस इज अफेक्टेड, ब्लिंकिंग, क्लियरिंग द थ्रोट, स्ट्रेचिंग ऑफ द शोल्डर, ऐसे करते हैं। ओके, आपको मैं पूछा क्वेश्चन, सर मेरे को पता नहीं। ओके, सो दीस आर द सम ऑफ द ट्विचिंग ऑफ द शोल्डर, दे कैन ऑकर आफ्टर एन्सेफेलाइटिस और इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ गिलीच-डिला-टोरेट सिंड्रोम। मैं आपको ये मेरा ये रहेगा गिलीच-डिला-टोरेट सिंड्रोम, मैं आप लोगों को इसके बारे में बोलूंगा डिटेल, एन्सेफेलाइटिस में देखने को मिलेगा। ओके, और साइकोजेनिकली डिटरमाइंड मोटर रेट, ओके, तो ये केस में भी हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रेमर्स, रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग वन और मोर बॉडी पार्ट। रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट इन्वॉल्विंग वन और मोर बॉडी पार्ट। रिदमिक मूवमेंट होगा, एक बॉडी पार्ट में हो सकता है, दो बॉडी पार्ट। जैसे मैं जो एक आदमी अल्कोहल अगर हर दिन पी रहा है, ओके, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, पैसा नहीं है, छोड़ दिया, ओके, तो क्या होगा? बॉडी मूवमेंट, जैसे अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम में ट्रेमोरिंग, दिस वन इज द ट्रेमोरिंग, अल्कोहल विथड्रॉल। अदर वन एक हाथ भी हो सकता है, दूसरा हाथ भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होगा। कैन इन्वॉल्व हैंड भी हो सकता है, आर्म भी हो सकता है, ओके, आईज भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, ऐसे। ओके, मेरा नहीं है, जस्ट आई एम शोइंग, इट विल बी लाइक दैट। ओके, ऐसे वो जितना भी कंट्रोल करने चाहेगा आदमी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। ओके, ऐसे रहेगा, ऐसे। ओके, हेड, उसके लिए वोकल कॉर्ड्स, ओके, ट्रंक्स, ओके, लेग्स, स्टैटिक इंटेंशनल पोस्चरल ट्रेमर होने का भी चांसेस है। कहाँ पर हम देखने, कौन कौन सा डिसऑर्डर में देखेंगे? एंजाइटी डिसऑर्डर में, कन्वर्जन रिएक्शन में देखेंगे, ड्रग विथड्रॉल में, पार्किंसनिज्म में, थायरोटॉक्सिकोसिस। ऑर्गेनिक ट्रेमर्स कैन वेरी इन इंटेंसिटी,
from day to day are made worse by emotional disturbance. Okay, next come back to the chorea. Brief, semi-directed, irregular movement that are not repetitive or rhythmic, but appear to flow from one muscle to the next. Often associated with एथेटोसिस, पजेल, हंटिंगटन कोरिया, सिडेनहम कोरिया, ड्रग इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी में हम कोरिया देखेंगे। इरेगुलर मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि रिपीटेड नहीं होगा बट रिदमिक होगा, एक बॉडी मूवमेंट से होकर दूसरा बॉडी मूवमेंट में होगा। ओके, सो नेक्स्ट है एथेटोसिस, स्लो रैटिंग, स्लो रीडिंग मूवमेंट इन्वॉल्विंग फिंगर, हैंड्स, टोज, फीट which bring about strange posture of the body, can be seen in catatonia. Okay, next come back to spasmodic torticollis. There is a spasm of the neck muscle, especially the sternomastoid. Okay, sternomastoid, which pulls the head towards the same side, twist the face in the opposite direction. Involuntary movements are associated with antipsychotic medication. They are also relatively common in drug native patients. 11.4% of drug native schizophrenia patient had orofacial dyskinetic movement and 7.4% had tardive dyskinesia. Okay, next come back to the abnormal induced movement. Automatic obedience, patient carries out every instruction regardless of the consequences. That was described by Hamilton in 1985. Echopraxia, patient imitate simple action of examiner. Okay, completely automatic होगा। इकोप्राक्सिया टू mirror images and voluntary इकोप्राक्सिया होगा। इकोलालिया मीन क्या, पेशेंट इको जे पार्ट होल ऑफ द बॉडी has been said to them. इकोप्रेक्सिया मीन एग्जामिनर का कॉपी करेगा। ओके, जो भी मीन उसका एक्शन को कॉपी करेगा, जैसे इकोप्राक्सिया। इकोलालिया में एक आदमी का आप कॉपी करेंगे। ओके, मीन जो भी बात बोल रहा है, जैसे बोल रहा है गुड मॉर्निंग, मैं सब में गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बोला, उस हिसाब से उसको कॉपी करना, तो उसको बोलते हैं इमिटेशन, दैट इज इकोलालिया। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू द मिच-मैनन cooperation. Body can be put into any position without any resistance on the part of the patient, although they have been instructed to resist all movement. Mitt-Gann very extreme form of cooperation. Patient moves their body in the direction of the slightest pressure on the part of the examiner. Okay, another general Hamilton or opposition. Patient opposes all passive movement with same degree of force as examiner. Okay, negativism, apparently motiveless, resistance नहीं है। आप लोगों को दिख रहा है या नहीं? Anyone just give me? Yes, sir. सबको दिख रहा है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ? आर यू गेटिंग एवरीथिंग ना? Yes, sir. Just wait. Okay, next we'll continue at evening. Okay, thank you all of you.